मैं जरा पंजाबी च गल कर लांगे। मेरे अपने लोग ने सारे। रात दे मुज़ाकरात होए। मैं क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਨੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਰਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਜਲਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਏ ਵੀ ਰੇਟ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਲਾ ਰਬਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜਿਸਲੇ ਲੋਕ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਗੇ ਵਰਸਾ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, DPO ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ, GT ਰੋਡ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਰਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਈਮ ਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਸਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਤਜਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰਚੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ, DSP ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ DCO ਸਾਹਿਬ ਤੇ DPO ਸਾਹਿਬ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਕਵਾਦ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਰਸ ਨੇ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ तक नहीं आवाम उठेगी। इंसाफ चाहिए। आप ये बताएं कि अभी भी आपके लवाकीन को और आपको थ्रेट आ रहे हैं? जी अभी भी थ्रेट है, मुझे खुद मेरी ज़ात पे थ्रेट है, मेरे भतीजों का थ्रेट है, मेरे भाइयों को थ्रेट है। मैंने इवन के थाने जाके ने ये तक कह दिया था, मैंने कहा आप ऐसा करें, ये मेरे 7-8 भाई हैं, इनके ऊपर FIR काटते हैं। ये किसी शख्स के जरिए जो है, शख्स के जरिए आते हैं, मैसेज आते हैं शख्स के। अभी जो आजम साहब के कत्ल के बाद हाँ जी, कितनी दफा आपको थ्रेट आया? उसके बाद एक दफा थ्रेट आया कि अभी मैंने 7 मारने, अभी भी। तो अभी आपका इंतजामिया से क्या मुतालबा है? अभी तक मेरा मुतालबा इंतजामिया से एक ही चीज़ है कि मुजरम पकड़ के ले आए। देखिए ये मुझे लॉलीपॉप देते हुए 4 साल गुजर गए हैं। यही जगह, यही उमर सलामत साहब भी आए, सब ने किया, चौधरी अरशद साहब आए, मूसा लाई आया, सब आए, मुझे लॉलीपॉप दे के चले गए। कल वाला वाकया जरा शेयर कर दें जो आपका SP साहब के साथ पेश आया। कल वाला वाकया ये, कल तकरीबन 2:15 बजे मैंने SP साहब को कॉल की है। उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, मैंने मैसेज कर दिया है कि हालात सर बहुत ख़राब है, थ्रेड्स आ रहे हैं। लेकिन SHO को कहता हूँ, वो कहते हैं अच्छा आज कर लेते हैं, आप बैठो, आप ये करते हैं, बैठ के प्लान बनाते हैं। इन्होंने 4 साल में स्वयं प्लान बनाने के कुछ नहीं किया।
मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरा भाई है जिसकी डेथ हुई है, मुझे भाई होने के बावजूद इतना मेरा सेंस है कि मुझे पता चला कि कल वो किधर गए हैं। पुलिस वालों ने सारी रात 8-10 घंटे मैंने टाइम दी है। आप आगे कह रहे थे कि कुछ पुलिस वाले हैं थाने में शराब पी के उधर जाते हैं, उनके नाम तो जरा बता दें। नाम मुझे नहीं पता, लेकिन थाने में से बंदा गया है, उधर जाके उनकी मुखबरियां करता रहे। मैंने SHO बिशारत साहब को बताया है, मैंने कहा जी ऐसे हो रहा है, ये मुखबरी हो रही है, थाने से मुखबरी हो रही है, इस थाना ककराली, इससे बड़ा मैं उन्हें क्या कह सकता था। फिर वो मुझे अब देखें मिसाइल कैसी दे रहे हैं, कहते हैं एक बंदा उसका इलाज कोटला में नहीं होता तो गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में नहीं होता तो खारियां में हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक आपने कहा, मैंने कोटले इलाज करवाया नहीं हुआ, खारियां करवाया नहीं हुआ, गुजरात करवाया नहीं हुआ, अब मैं फिर गुजरात से आगे लाहौर या इस्लामाबाद आएगा, मैं उधर जाऊंगा ना। फिर मैंने रात को इन्होंने पूरी रात 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अगर कोई एफर्ट किया, आप लोगों के सामने ले आए यार। एक बंदे को पहले इन्होंने पकड़ के लाए, 8 दिन बाद उसको छोड़ दिया, वही बंदा फिर पकड़ के ले आए, उसका क्या फायदा? जिसको पकड़ना उसको पकड़ो। इनको पता है ये मेरे साथ क्यों वादा कर दे रहे हैं जी, हम बंदे को वाच कर लिया, हम उसके पीछे हैं। अगर उसके पीछे थे तो वो किधर गया बंदा? फिर 2 SHO साहब ने मुझे कहा है कि तारक हमें एक बंदे ने वादा किया है, आपको एक बंदा दे देते हैं। मैंने कहा चले सर आप एक तो ले लें। आप उन बंदों को बुलाएं जिन्होंने वादा किया है, वो किधर गए? आजम साहब जो थे वो कोटला के ताजर थे, तो जब उनके थ्रेड मिला है तो उन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर सर बहुत एहतियाती तदाबीर ये की है हमने कि दुकान हमारी बंद होती है शाम 6 बजे, हमने उनको दुकान से 3-3:30 बजे भेजना घर शुरू कर दिया कि वो सिर्फ असर की नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ के चले जाते थे। मेरी उनकी इस बात पे लड़ाई होती, मैंने आप ना जाओ, कहता डर के घर भी तो नहीं बैठा जा सकता ना। वो देखिए जी पुलिस तो लगातार जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। अभी क्योंकि वक्त गुजर गया, 4 बंदे चले गए ने दुनिया तो, असी कोई ये नहीं कि असी पुलिस के अंगेस्ट आए हैं, ये पुलिस के अंगेस्ट ने, असी पाकिस्तानी शहरी हैं, अपना हक चाहते हैं कि यह साढ़े नाल जुर्म होया, मुलजमान ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाए। मैं तो अगर इतने बैठा मैं अपना हक मांग रहा, मैं उन्होंने नहीं कह रहा तुसी मैनू माल दो, तुसी मैनू दौलत दो, मैं कहना बंदे गिरफ्तार करो। आज मैं तू चला जाना, परसों बंदा कत्ल हो जाए, कौन जिम्मेदार है इस बात का? कौन जिम्मेदार? अभी अगला कत्ल हुए 3 महीने नहीं गुजरे। ये जरा उनके प्लीज नाम बता दीजिएगा। जो पहला कत्ल हुआ है मोहम्मद यूनुस जो मेरा सक्का चाचाजाद बेटा है, दूसरा बशीर बुटर है जो मेरा फुफीजाद भी है और बनोई भी है, तीसरा जो है वो भी मेरा कज़न है, वो मेरा बनोई है, चौथा आज मेरा सगा भाई आ गया। इस लिस्ट में मैं भी आ सकता हूँ, इस लिस्ट में मेरे बाकी रिश्तेदार भी आ सकते हैं। जो SP इन्वेस्टिगेशन है जिनके साथ आपका राब्ता हुआ है उसके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने सारे थर्ड। देखें जी ये तो DPO साहब कर सकते हैं, RPO साहब कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। नहीं आप वो तो कल के मेरे सामने नहीं अभी तक आए, मेरे सामना नहीं तक नहीं उन्होंने किया, स्वाय एक DSP के कोई बंदा मेरे सामने नहीं आया। उधर पानी देता है, एक DSP सामने आया, इसके अलावा कोई बंदा नहीं आया। शुक्रिया।